Hello everyone. Today we will discuss the chapter Computer Network and Network Types for the purpose of revision. So let's have a look. First of all, what is computer network? As we all know that network means collection or combination of multiples. So in computer network, the computer network is a collection of computers that are connected through a communication channel for the purpose of sharing of information and sharing of resources. So बेसिकली नेटवर्किंग मेथड यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं. सो अगर हम नेटवर्किंग मेथड यूज करते हैं देन वी कैन कम्युनिकेट इजीली, देन वी कैन शेयर आवर हार्डवेयर एंड अदर रिसोर्सेज, वी कैन शेयर आवर फाइल्स, then we can share our softwares or we can share our information. So these are the benefits of computer network. And the disadvantage, as we have already discussed it, first of all, lack of robustness, then there are some security issues in network, and third one is the cost of network. So these are the disadvantage of computer network. It depends on our utility. These disadvantages are not permanent. Sometimes these are the cost or robustness or security provisions are the useful or beneficial for us. So now evaluation of networking. First of all, networking का evaluation कहाँ से हुआ? As we all know that इंटरनेट कहाँ से डेवलप हुआ था? ARPANET, ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. सो यूएस गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर सबसे पहले कुछ कंप्यूटर्स को यूज किया था फॉर द पर्पज ऑफ नेटवर्किंग. देन उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये यूज़ हुआ. आफ्टर दैट जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया. तो उस टाइम पर ARPA नेट को एक नेम दिया था इंटरनेट. सो इंटरनेट बेसिकली है क्या? इंटरनेट एक कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है. सो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क एंड इंटरनेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क्स. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ऑनलाइन मूवीज़ और गेमिंग एप्लीकेशंस रन करना, डेटा ट्रांसफ़र, फाइल शेयरिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, internet forums, social networking, online shopping, some financial services. So for all these types of purpose, we can use a global network. So internet is a global network which works on TCP and IP protocol. Now the internet space, it is a client server software program that allow multiple users to communicate online with real time audio, video or text type data. So internet space is a kind of private space which is based on internet. Now the switching techniques. So switching techniques means it is used for transmitting data across networks. So we have two types of switching techniques, circuit switching and packet switching. In circuit switching we establish a fixed or permanent path between sender and receiver. So basically circuit switching technique works on end-to-end transmission. In this the message is transmitted through a path. और सर्किट स्विचिंग टेक्निक मोस्टली वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है. एंड पैकेट स्विचिंग टेक्निक, इन दिस टेक्निक मल्टीपल यूजर्स कैन कनेक्ट थ्रू अ कॉमन गेटवे एंड फ्रॉम दिस गेटवे वी कैन कनेक्ट टू आवर सर्वर. So this is the concept of packet switching. In this, multiple users can send their data packets simultaneously on a common gateway, and from there the data packets will deliver to server. So this is the concept of packet switching. So TCP प्रोटोकॉल डेटा के पैकेट क्रिएट करने में और IP प्रोटोकॉल उन पैकेट्स को एक डेस्टिनेशन और एक एड्रेस पर डिलीवर करने के लिए यूज होती है. Now data communication terminology. So first of all, communication channel. Communication channel means a medium by which we can connect our computers. So it may be physical or it may be logical, means wired or wireless. Now bandwidth. Bandwidth means the data carrying capacity of any channel is known as bandwidth, and data transfer rate means the amount of data in digital form that is moved from one place to another is a data transfer rate.
So we can measure data transfer rate with a given time frame, like BPS, bits per second, kbps, kilobyte per second. Here bit and byte, please remember the difference between bit and byte. We represents bit with small b and we represents byte with capital B. So kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, these are the measurement units of data transfer rate. Now transmission media. Transmission media means any type of medium by which we can communicate or we can connect the computers. So there are two types of media, wired or wireless. First one is wired network. It is also known as Ethernet network. That is most common type of LAN technology. So in wired network, simply a collection of two or more computers, printers and other devices linked by Ethernet or cable or any other form of wired medium. So Ethernet is the fastest wired network protocol with 10 Mbps speed. So Ethernet, NIC, LAN कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, कई बार हम कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग में जब कनेक्ट करते हैं तो मोर देन वन कंप्यूटर्स जब कनेक्ट होंगे तो उनको लैन कार्ड और NIC और इंटरफेस कार्ड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और अलॉन्ग विद अ वायर. सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज वायर्ड नेटवर्क. नेक्स्ट वन इज वायरलेस नेटवर्क. वायरलेस नेटवर्क मीन्स कोई भी ऐसा नेटवर्क जिसमें विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, हम विदाउट वायर या विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, और वी कैन से दैट लॉजिकल टाइप ऑफ कनेक्शन वी कैन कनेक्ट आवर कंप्यूटर्स. सो बेसिकली बिना किसी नेटवर्किंग केबल के और फॉर द पर्पज ऑफ मोबिलिटी हम जब कंप्यूटर्स और डिवाइसेज और रिसोर्सेज को कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क क्या है? वायरलेस नेटवर्क. सो वायरलेस नेटवर्क के लिए कुछ अलग अलग टाइप्स के मीडियम्स हैं. लाइक फर्स्ट वन इज इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन. सो इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है जिसमें कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर तक हम हमारे रेंज को, हमारे डेटा की रेंज मेंटेन करते हैं और उस पर्टिकुलर रेंज में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सो इंफ्रारेड मेथड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन फॉलो करता है जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को एक पर्टिकुलर लाइन के थ्रू अलाइन होना चाहिए. एंड इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन किसी भी हार्ड ऑब्स्टेकल को पेनेट्रेट नहीं कर सकता. सो इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट होने चाहिए इन द वायरलेस फॉर्म. नेक्स्ट वन इज रेडियो वेव ट्रांसमिशन. रेडियो वेव ट्रांसमिशन एक लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन मेथड है जो एक कुछ मीटर से और एक पूरा सिटी भी कवर कर सकता है. लाइक वॉकी टॉकी एग्जाम्पल है. जैसे वायरलेस नेटवर्क हम यूज़ करते हैं तो उसमें वॉकी टॉकी के थ्रू हम पूरे सिटी में या पुलिस है या कोई भी सिक्योरिटी रीजन से हम कुछ डिवाइसेज यूज़ करते हैं तो वो सब रेडियो वेव ट्रांसमिशन के थ्रू वर्क करती हैं. ओमनी डायरेक्शनल मीन्स बाई डायरेक्शनल ऑल डायरेक्शन में वर्क कर सकती हैं और किसी भी सेंडर और रिसीवर पॉइंट में एक प्रॉपर अलाइनमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती. सो बेसिकली जो ये वायरलेस नेटवर्क हम यूज़ कर रहे हैं वॉकी टॉकी के थ्रू रेडियो वेव ट्रांसमिशन, ये सराउंडिंग ऑल डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर सकता है और हार्ड ऑब्स्टेकल्स को भी और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को भी पेनेट्रेट कर सकता है. सो बेसिकली रेडियो वेव ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन का एक इनएक्सपेंसिव मोड है बट it is a insecure communication. Now the next one is microwave radio. So it is a form of radio transmission that use ultra high frequencies. point to point communication है microwave और rather than a broadcast transmission system. So basically हम broadcast के लिए transmission system के लिए कुछ methods यूज करते हैं बट माइक्रोवेव रेडियो ट्रांसमिशन मेथड एक अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का मेथड है. ठीक है, और यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर एंटीना के थ्रू जब आप किसी भी डिवाइस को या टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन ऑफ साइट के साथ कनेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वर्ल्ड वाइड कवरेज प्रोवाइड करता है और किसी भी पॉपुलेशन और डेंसिटी पर डिपेंड नहीं होता और फोन्स, नेविगेशन, GPS, ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी इन सब के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज होता है और बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज के कम्युनिकेशन के लिए
हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज करते हैं एंड इट कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क डिवाइसेज. So computer hardware devices which are used to connect computers, printers or any other electronic devices to a computer network are called network devices. तो किसी भी टाइप के कंप्यूटर कम्युनिकेशन को मेंटेन करने के लिए अगर आप सपोर्टिंग कोई भी डिवाइस यूज करते हैं तो वो क्या है, नेटवर्क डिवाइसेज, जो आपके नेटवर्किंग कम्युनिकेशन को स्मूथ, एफिशिएंट और एरर फ्री बनाने में हेल्प करती है. लाइक मॉडेम, NIC, RJ45 कनेक्टर्स, these are routers, switches, these are the examples of networking devices. So first one is NIC, network interface card. तो जितनी भी डिवाइसेज आप यूज करते हैं या जो भी नेटवर्क डिवाइसेज आप यूज करते हैं उन सब के अंदर सबसे टॉप और सबसे पॉपुलर जो डिवाइस है वो है NIC. इसको हम नेटवर्क एडेप्टर कार्ड, ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड भी कहते हैं, जो बेसिकली हमारे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने और कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है. तो किसी भी एक पर्सनल कंप्यूटर में अगर हम NIC इंटरफेस यूज करते हैं तो बेसिकली ये पैरेलल फॉर्म में डेटा ट्रांसमिशन करने में हमें हेल्प करेगी. नेक्स्ट वन इज RJ45. इट इज़ अ जैक और एक कनेक्टर. सो RJ मीन्स रजिस्टर्ड जैक. So it is an 8-wired connector that is used to connect computers on a local area network. मीन्स अगर आप लैन कार्ड NIC के थ्रू जब कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पर 8 पिन का एक सॉकेट हम यूज करते हैं. वो सॉकेट है RJ45 कनेक्टर, जो 8 पिन का होगा, जिसके थ्रू आप अपनी केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करोगे और मल्टीपल डिवाइसेज को आप कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज हब. हब क्या है? मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिंगल नेटवर्क, लैन नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए हम हब यूज करते हैं. और हब 4, 8, 12, 24, 48 अलग अलग पोर्ट्स के अवेलेबल हैं. तो जब एक हब के पास कोई भी सिग्नल रिसीव होगा उसके किसी भी एक पोर्ट पर, तो वो उस सिग्नल को आगे जितने भी पोर्ट्स हैं उन सब पे ट्रांसफ़र और शिफ्ट करेगा. तो बेसिकली एक सिंगल इनपुट के थ्रू आप मल्टीपल आउटपुट और मल्टीपल कनेक्शन सेट कर सकते हो. सो बेसिकली दो टाइप के हब हैं, एक्टिव एंड पैसिव हब. सो पैसिव हब कौन सा है? जो सिर्फ आपके सिग्नल्स को एज इट इज आगे की डिवाइस पर फॉरवर्ड करेगा विदाउट एम्पलीफाइंग और विदाउट बूस्टिंग देम. एंड एक्टिव हब क्या करेगा? जितने भी इनपुट सिग्नल्स होंगे या इनकमिंग सिग्नल्स होंगे उनको एम्पलीफाई मीन्स बूस्ट करेगा और उसके बाद आगे फर्दर जो भी टर्मिनल्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा. पोर्ट के बेसिस पर भी हब के कुछ टाइप्स हैं, ईथरनेट हब और कॉम्बो हब. सो ईथरनेट हब क्या है? जिसमें सभी RJ45 कनेक्टर्स के थ्रू आप कनेक्शन सेटअप करोगे. कॉम्बो हब जो RJ45, BNC, AUI कुछ अलग अलग टाइप के हब पोर्ट्स को भी कनेक्ट कर सकता है. नेक्स्ट वन इज स्विच. स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर. स्विच भी हब की तरह ही होगा, लेकिन ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैन के सेटअप में ऐड कर सकता है. स्विच 4, 8, 12, 24, 48, 64 पोर्ट्स में अवेलेबल है. स्विच अपने स्विचिंग डिसीजन के थ्रू एक इंटीग्रेटेड सर्किट में भी यूज होता है. तो ड्यू टू स्विचिंग डिसीजन कैपेबिलिटी स्विच सेंड सिग्नल्स टू रिसिपिएंट ओनली एंड दैट्स वाई स्विचेज आर कॉल्ड इंटेलिजेंट हब. अगर आप सिंपली हब यूज करते हैं तो जितने भी टर्मिनल्स है, लाइक ये मेरे पास एक हब है, इस हब के अंदर एक इनपुट मेरा आ रहा है, बाकी सब मेरे पोर्ट्स कनेक्ट हैं, तो मेरा डेटा इन सभी कंप्यूटर्स पे, इन सभी पोर्ट्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. बट इन केस ऑफ स्विच, अगर मेरा डेटा एक सिंगल स्विच पर मैंने इनपुट किया और ये स्विच मैंने लगाया हुआ है, तो इसमें स्विच की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक इंटेलिजेंट हब की तरह काम करता है. तो ये उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेटा सेंड करेगा जहाँ पर मुझे एग्जैक्टली और एक्चुअली उसकी रिक्वायरमेंट है. बाकी अगर इन दो पोर्ट्स पर मुझे मेरा डेटा रेस्ट्रिक्ट करना है देन मैं उनको रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता हूँ. तो दिस इज़ द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. नेक्स्ट वन इज मॉडम. मॉडम क्या है? मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टेक्निक का एक डिवाइस है. सो इसको हम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी कहते हैं. लाइक हमारे टेलीफोन के जो सिग्नल्स हैं एनालॉग हैं और कंप्यूटर के सिग्नल्स कौन से हैं? डिजिटल. तो मॉडम एक डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम आती है.
So this process is known as modulation and demodulation, and the device name is modulator demodulator. Repeater is a device which is used to amplify or boost the strength of any signal. Sorry, like मेरे पास सेंडर और रिसीवर 2 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने रिपीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया. तो रिपीटर क्या काम करेगा, जो भी मेरे इनकमिंग सिग्नल होंगे उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी, बट रिपीटर क्या करेगा, उन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, इम्प्रूव करेगा और आगे रिसीवर के पास सेंड करेगा. देन रोटर, गेटवे, एक डिवाइस और है यहाँ पर ब्रिज, वो अभी आपके इसमें नहीं है बट एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लेते हैं. बेसिकली कि हमारे पास जो भी डिवाइसेज हैं, जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, सो बेसिकली हमारे पास कोई भी 2 नेटवर्क हैं. तो ब्रिज एक डिवाइस है. ब्रिज डिवाइस क्या काम करेगी, 2 नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है ब्रिज. बट कंडीशन इज दिस कि दोनों नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल पे वर्क करने चाहिए. तो ये मेरे पास एक नेटवर्क है 1, ये मेरे पास एक नेटवर्क है 2, दोनों अगर सेम प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं तो ब्रिज एक डिवाइस है जो इनको कनेक्ट करने के लिए सूटेबल है. सेकेंड डिवाइस आती है राउटर. राउटर 2 से ज़्यादा डिवाइसेज को कनेक्ट कर सकता है. सपोज ये मेरे पास राउटर है और ये मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेज हैं जिनको मैं राउटर के थ्रू कनेक्ट करता हूँ. सॉरी, ये मल्टीपल नेटवर्क्स हैं जिनको मैं राउटर के थ्रू कनेक्ट करता हूँ. सो नेटवर्क 1, 2, 3 एंड 4 राउटर के थ्रू कनेक्ट हो गए. और कंडीशन यही है सेम कि प्रोटोकॉल इन ऑल 4 नेटवर्क्स की प्रोटोकॉल सेम होनी चाहिए. राउटर में और ब्रिज में दोनों में डिफरेंस क्या है, राउटर सिर्फ 2 नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, ब्रिज 2 नेटवर्क को कनेक्ट करेगा, राउटर 2 से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट कर सकता है. बट दोनों या सभी नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल वाले होने चाहिए. बट गेटवे क्या काम करेगा, गेटवे मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट कर सकता है और चाहे वो किसी भी अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हो. तो जैसे मैंने यहाँ पर ही 4 नेटवर्क बनाए, चारों नेटवर्क अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, बट थ्रू द गेटवे, वे विद द हेल्प ऑफ गेटवे we can connect all these 4 different networks. So this is the basically difference between bridge, router and gateway. Next one is Wi-Fi card. Wi-Fi card is simply a wireless card. जैसे आप लोग कोई मोबाइल यूज़ करते हैं, आपका मोबाइल वायरलेस इनेबल्ड है, मीन्स आपके मोबाइल में एक वायरलेस कार्ड लगा हुआ है. तो किसी भी नियर बाई रेंज में या आपकी इस पर्टिकुलर रेंज में अगर कोई वाईफाई नेटवर्क है तो आपका मोबाइल उस नेटवर्क को डिटेक्ट करता है और सिक्योरिटी रीजन से जो भी पासवर्ड्स लगे हुए हैं, जो भी सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं, उनको फॉलो करके आप अपने मोबाइल को उस वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हो. तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में या आपके लैपटॉप में वाईफाई कार्ड लगा हुआ है. तो वाईफाई कार्ड इज ऑल्सो अ नेटवर्क डिवाइस. बट उसके लिए कंडीशन है कि योर फोन, योर लैपटॉप और योर कंप्यूटर will be equipped with the Wi-Fi card. So Wi-Fi कार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप्स के अवेलेबल हैं. जनरली आजकल जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उसमें इनबिल्ट है, इंटरनल वाईफाई कार्ड आप यूज़ करते हैं. बट इनकेस अगर आपके पास वाईफाई सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वाईफाई कार्ड अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन अटैच एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड. Then the next topic is structure of a network. So we will discuss this in next video segment. Okay, thank you.